एक्सोडस 40 चैप्टर हम पढ़ेंगे। निर्गमन 40 अध्याय हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में PSI बाइबल में से। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपकी महानता सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। ये वचन हमारी दोस्ती है खुदा, ये वचन हमारा प्रेम है खुदा, ये वचन हमारे सब कुछ के लिए है खुदा। इस वचन के अंदर से परमेश्वर जो हम में होता है वो सर्वशक्तिमान का होता है। थैंक यू फादर गॉड। इस वचन के लिए हम अपने आप को दे देते हैं। हमारे सारे समय को और जीवन को भर दे तेरे समझ ज्ञान बुद्धि से, इन वचनों के अंदर से। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 40 हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 40। द टैबरनेकल इज कमांडेड टू बी reared and anointed, Aaron and his sons to be sanctified. A cloud covereth the tabernacle. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation, and thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the veil. And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it. And thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof. And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle. And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation. And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein. And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate. And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof, and it shall be holy. And thou shalt anoint the altar of the burnt offering and all his vessels, and sanctify the altar, and it shall be an altar most holy. And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it. And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water. And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him, that he may minister unto me in the priest's office. And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats, and thou shalt anoint them as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest's office. For their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations. Thus did Moses according to all the Lord commanded him, so did he. And it came to pass in the first month, in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up. And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars. And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it, as the Lord commanded Moses. And he took and put the testimony and the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark. And he brought the ark into the tabernacle, and set up the veil of the covering, and covered the ark of the testimony, as the Lord commanded Moses. And he put the table in the tent of the congregation upon the side of the tabernacle northward, without the veil. And he set the bread in order upon
it before the Lord as the Lord had commanded Moses. And he put the candlestick in the tent of the congregation over against the table on the side of the tabernacle southward. And he lighted the lamps before the Lord as the Lord commanded Moses. And he put the golden altar in the tent of the congregation before the veil. And he burnt sweet incense thereon as the Lord commanded Moses. And he set up the hanging of at the door of the tabernacle, and he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering as the Lord commanded Moses. And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there to wash withal. And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat when they went into the tent of the congregation. And when they came near unto the altar, they washed as the Lord commanded Moses. And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। निवासस्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा, पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तुम मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना, और अभिषेक का तेल लेकर निकाल निवास का और जो कुछ उसमें होगा उस सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाये समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तो उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया, और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया, और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंटे डाले, और उसके खम्भों को खड़ा किया। और उसने निवास के ऊपर
तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया। और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला। और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मिलाप वाले तंबू पर बादल, 34 वचन से आगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कुछ करते थे। और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था, उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने इतना महान काम हमारे जीवन के लिए किया। आपको धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर पिता मिलाप वाले तंबू के विषय में आज पढ़ा खुदा, मेरे खुदा हमारा घर भी परमेश्वर, हम उस घर में रहते हैं जिसके अंदर परमेश्वर तेरी उपस्थिति है। मेरे पिता तू हमारे अंदर मौजूद है। हम तेरा परमेश्वर मंदिर है। मेरे पिता हम जहाँ है वो सारा जगह तेरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और पिता कोई दुष्ट शक्तियों का ये पिता कोई डेरा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इस घर के चारों ओर से जो भी पर्दे लगे हैं, जो भी परमेश्वर इस घर की प्राइवेसीज है, वो सब कुछ परमेश्वर पिता तेरे पवित्रता और तेरे धार्मिकता के साथ है। उसके अंदर परमेश्वर तेरे पिता शुद्ध और पवित्र जीवन का परमेश्वर अनुचरण होता है। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन सच्चा और खरा है, जो हमें शुद्ध और पवित्रता देता है। हम धन्यवाद करते, इस घर की रखवाली तू है, इस घर के चौखटे तू है प्रभु यीशु मसीह, इस घर का दरवाजा तू है, इस घर के परमेश्वर माथा तू है, इस घर का छत जमीन दीवारें तू है प्रभु यीशु मसीह, इस घर के चार दिशाएं तू है प्रभु यीशु मसीह, इस घर का पैसेज डोर पिता बालकनी और पिता परमेश्वर ग्रिल का छत चारों ओर से पिता हम यीशु मसीह सब कुछ तू है कहते हैं। अब फादर गॉड, इसमें जो कुछ भी किया जाएगा वो तुझे किया जाएगा। मेरे पिता हमारा फाइनेंस तू है, हमारी सेहत तू है, हमारे जमीन तू है, हमारे कागजात तू है, हमारा आईडी प्रूफ्स तू है, हमारा सब
कुछ परमेश्वर तू है यीशु मसीह। जो कुछ भी इन किसी भी बातों पर किया जाएगा वो तुझ पर किया जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सारे इस पृथ्वी के ऊपर के डिटेल्स तू है, पवित्र यीशु तू है। इसके लिए खुदा हमारे नाम तू है, हमारी पहचान तू है। हमारा कोई भी हिस्सा, हमारे कपड़े, हमारे उठना बैठना चलना फिरना, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कोई भी कुछ भी करेगा वो तुझे कर रहा है। अब फादर गॉड, तुझे निपटना है। तूने पौलुस के लिए, शाऊल था तब पौल बनाने के लिए तू ही निपटा उनके साथ। मैं भी वही प्रार्थना करती हूँ। हम मसीहों के लिए जो कुछ भी किया कराया जाता है, जाने वाला है या किया कराया जाने का पिता परमेश्वर कोई योजना युक्ति बनाया जा रहा है, सब कुछ पिता परमेश्वर तेरी ओर है, तुझ पर होने जा रहा है। तू उपाय होना है उसके लिए। मेरे परमेश्वर, तेरे पास सब कुछ का उपाय है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर तूने उपाय ना किया हो। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु के नाम में आज के इस वचन में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 17 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स, सैम्स 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 वचन से 9 वचन। भजन संहिता 11 अध्याय 12 अध्याय 13 अध्याय हम पढ़ेंगे। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा जो चाहिए वो वचन हम में पहुंचाएगा और हमें एकांत में सुधार करेगा। हमारा चरित्र बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, हमारे दर्शन बदलेगा। बहुत कुछ हमें जो पर्सनली व्यक्तिगत चाहिए वो सब कुछ वो दे पाएगा। ऐसा होने के लिए हमने एकांत में, पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में इन वचनों को पढ़ने का फैसला लिया है। आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे आप परमेश्वर का आत्मा लीड करता है वैसे आप उसे पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा का लाभ हमने निश्चित उठाना है इस बाइबल रीडिंग में। नासरी यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह का सारा काम हमारे अंदर पूरा होना है। जो भी वो वचन के अनुसार हमको देना चाहता है वो हमें मिलता जाए, हमारे जीवन में वो पूरा होता जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन।